Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. In this video, we'll be covering our next chapter, chapter number 2 of history, which is all about from trade to the territory. We'll learn about how the company came to India and settled their rule all over the territory. We'll be learning how the Britishers were able to control and rule all over the territory. We'll be studying our chapter number 2, which is all about from trade to territory. The company establishes the power. Okay, when we were studying history, very first chapter, we have learned that history is divided into three parts. As per James Mill, it is divided into Hindu, Muslim and British history. Whereas when we talk about in general, it is divided into ancient, medieval and the modern history. So we are now studying about the modern part of the history. Okay, so we will talk about the period when the Mughal period, the Mughals rule ended in 1707 and how and what change did it brought to the territory. Territory here means India. Now, the very first fact here is the period of Mughal ends in 1707. मुगल राज कब खत्म हुआ? 1707 में. औरंगजेब नाम सुना होगा सबने. औरंगजेब was the last powerful Mughal ruler. If the question comes, who was the last powerful Mughal ruler? मुगल्स में जब हम बात करते हैं उनका लास्ट सबसे ताकतवर राजा कौन था? औरंगजेब. Okay, he was the only who established the control over the large part of the territory and which is known as इंडिया. ये एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जगह पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और उस टेरिटरी को जाना गया किस नाम से? इंडिया नाम से. ओके, बट इन 1707 ही पास्ड अवे. 1707 में उनकी डेथ हो गई तो ही वॉज नो मोर. नाउ द मुगल गवर्नर्स who were known as सूबेदार्स and the big zamindars means the big landlords now started asserting the authority. उन्होंने authorities को मानना बंद कर दिया क्योंकि जो लास्ट पावरफुल रूलर था he was no more. अब वो रूलर्स को इतना पावरफुल नहीं मानते थे, ना ही उनकी अथॉरिटी को फॉलो करना पसंद करते थे. Therefore they now started asserting the authorities, मानना मना कर दिया. And being so powerful and authoritative themselves, they started setting up their own regional kingdoms. अब खुद को ही बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगे और खुद के ही हर रीजन वाइज उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए. दिल्ली वॉज नो मोर द सेंटर ऑफ पावर. जब कोई भी जैसे बड़े बड़े रूल रहे हैं लाइक दैट ऑफ मुगल्स, सारा सेंटर ऑफ पावर कहाँ रहते थे? हमारी दिल्ली. दिल्ली वॉज द हॉट सीट. लेकिन अब क्योंकि रीजनल किंगडम इमर्ज होने स्टार्ट हो गए थे तो हर रीजन वाइज अलग अलग पावर थी. Therefore, center of power Delhi में नहीं रही. And by the second half of 18th century, a new political identity emerged. इसके second half में, okay, like by the end of 1700, we got a new political identity who were the Britishers. So I hope the idea is clear about this chapter. Whom we are going to talk about? Who is the company here? The Britishers. We'll study Why did they came to India? हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया आए थे, उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी, एंड when did they capture the large empire of India, और उन्होंने कैसे कैसे पूरा अपना कंट्रोल जमा लिया हमारी टेरिटरी के ऊपर. अभी तक हमें पता चला है कि मुगल के रूलर जो लास्ट पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, वो नहीं रहे थे एंड द मुगल रूल वाज मोर ऑफ नाउ सिंबॉलिक. ओके, सिर्फ नाम के लिए रूल था, अदरवाइज रीजनल किंगडम में सबने अपने अपने किंगडम सेटअप कर लिए थे. नाउ वी टॉक अबाउट द मेजर which is all about the East India Company. Okay, this is the time of 1600. Okay, when the East India Company acquired the charter from the ruler of England. East India Company एक ट्रेडिंग कंपनी थी. ओके, जिन्होंने एक चार्टर मीन्स एक उस जमाने में पेपर पे लिख के परमिशन लेनी होती थी फ्रॉम द रूलर
कि हम क्या ट्रेड कर सकते हैं आउटसाइड द कंट्री. ओके, सो इन 1600 दिस ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एक्वायर्ड, उनको परमिशन मिल गई किससे? फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? इंग्लैंड की है. ओके, उस टाइम उनका रूलर कौन था इंग्लैंड में? क्वीन एलिजाबेथ वन. क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले ली थी कि क्या अब वो ट्रेड कर सकती है ईस्ट के साथ. आई विल बी शोइंग यू ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड मैप आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस story, so that the idea is clear to you which all direction I am talking about of the world. Okay, so चार्टर का मतलब ये था कि ग्रांटिंग द राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दे दी थी कि तुम जाके ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो. ओके, एंड नो अदर ग्रुप कैन डू दिस एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. कोई और नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही परमिशन थी. नाउ द कंपनी वांटेड टू वेंचर अक्रॉस द ओशन. अब कंपनी ऐसी जगह ढूंढ रही थी अक्रॉस दिस ओशंस, भी समुद्र के पार, जहां से वो क्या कर सके? चीप, सो दैट दे कुड बाय द चीप गुड्स एंड कैरी देम बैक टू यूरोप एंड सेल एट हायर प्राइस. ओके, वे सस्ते में सामान खरीद के लाए बाहर से और यूरोप में आके उसी सामान को बहुत ही हाई प्राइस पे बेचे. इसका मोटिव क्या है पीछे? टू अर्न द प्रॉफिट. ओके, तो उनका मेन था कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, सो दैट उनको कहीं से अब सामान सस्ते में मिल जाए. During that time, the mercantile company were becoming very famous. When I say mercantile company, it is a type of company which look for only profit. They buy cheap stuff and sell at high price in order to earn this profit. तो mercantile companies इतनी ज़्यादा famous हो रही थी कि earlier the charter was with the East India Company, लेकिन क्योंकि ये चीज़, ये बिजनेस इतना ज़्यादा एकदम फेमस हो गया उस टाइम पे, so many other companies also even started to venture outside their nation. But this was the time when these English ships started sailing down the African continent around the Cape of Good Hope and they landed in the Indian Ocean. Okay, where lies our the coast of our western side. Okay, India की जो western coast है वो Indian Ocean की side है. If we come towards the African continent, तो हमें Indian Ocean में हमारे इंडिया टेरिटरी का वेस्टर्न साइड दिखाई देगा. ओके, तो जब ये लोग इंडियन ओशन पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि हमसे पहले ही पोर्चुगीज जो थे पोर्चुगल से, वो लोग पहले ही आके अपना कंट्रोल जमा चुके हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि गोवा है. ओके, गोवा के अंदर उनका अभी तक कंट्रोल बन चुका था. किनका? पोर्चुगीज का. बिकॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. वास्को डी गामा, a Portuguese explorer in 1498, has already explored the sea route through the Cape of Good Hope to the Indian continent. Okay, तो ये रूट उनको पहले से पता था, but in the early 17th century, Dutch and the French people have also started coming to our country, which is India, for the trading purpose. तो हमें क्या पता चला? The first कौन थे फॉरेनर्स जो इंडिया में आके सेटल डाउन हुए थे? इट वॉज द पोर्चुगीज, नॉट द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स कब आए थे? हमारी 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में. ओके, उनसे पहले तो डच और फ्रेंच भी आ चुके थे. नाउ द कॉम्पिटिशन वॉज रियली टफ. बिफोर वी मूव अहेड विद द स्टोरी, लेट्स फर्स्ट सी इट इन द वर्ल्ड मैप. नाउ लेट्स सी द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप so that the idea is clear. We are here. This is India, okay, and this area is the Indian Ocean. This is the African continent, and here lies our European country. So the English came all the way from here through this ocean route down this African continent through this Cape of Good Hope route. This is a place which is known as the Cape of Good under this African continent, and from this route
they reached here in the Indian Ocean. And this is the western side of India, western coast. Because western coast क्यों? क्योंकि इसके इस साइड, western side पे western nation है, and this is the eastern coast क्योंकि इसके इधर eastern countries हैं. When we talk about India, India को east क्यों consider किया गया? क्योंकि India lies to the east of European country. Okay, तो उनके लिए तो हम east में ही हैं. Therefore, जब यूके से, इंग्लैंड से लोग थ्रू द ओशन रूट केम थ्रू दिस केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड इंडिया हियर, तो वेस्टर्न साइड पे उन्होंने देखा कि पोर्चुगीज पहले से ही अपना किंगडम, अपना रूल जमा के बैठे हैं किधर? गोवा के अंदर. ओके, और इस टाइम तक ये रूट फ्रेंच और डच पीपल को भी क्लियर हो चुका था कि ऐसे करके कोई लैंड है जहां से हम गुड सस्ते में खरीद सकते हैं. Now, after understanding the route on the world map, let's see what was the problem. As we all know, who were the players here? The Britishers, okay, like the East India Company, the Portuguese, the Dutch and the French. All are part of European countries. So, what happened? The problem now arrived. क्या problem निकल के आई? Everybody, all the European countries were now interested in buying the same good, क्योंकि mercantile business was getting famous day by day and everybody want to earn the profit. उसी के चक्कर में तो वो लोग इंडिया आए थे. Therefore, एक नई प्रॉब्लम निकल के आई, क्योंकि जब इंडिया पहुंचे वो लोग, उन्होंने देखा कि हम ही नहीं है, और भी लोग यहाँ पहले से पहुंचे हुए हैं, एंड एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम गुड, और सब लोग एक ही चीज खरीदना चाहते हैं इंडिया से. By this time, India was known for the cotton and the fine silk in the European countries. India की बहुत बड़ी, India was having a very big market of cotton and the fine silk. बहुत बड़ी मार्केट थी इंडिया की कॉटन और फाइन सिल्क की, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस थी. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड फाइन सिल्क कम फ्रॉम इंडिया. Okay, also with time, pepper, cloves, cardamom, cinnamon, etc. got famous. अब क्योंकि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, यहाँ बहुत तरह तरह के हमें मसाले स्पाइसेस मिलते हैं. Therefore, यहाँ आके उन्होंने देखा कि पेपर काली मिर्च, कार्डिमम इलायची, सिनामन दालचीनी, क्लोव्स, ऐसे करके ये सारी चीजें यहाँ बहुत मिलती हैं. इससे दे कुड इवन प्रिजर्व देयर फूड फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो लोग तो मीट ईटिंग कंट्री से हैं, मीट खाते थे. देयरफॉर मीट को प्रिजर्व करने के लिए इन सब मसालों की जरूरत पड़ती थी. यहाँ आके उन्होंने रियलाइज किया, वाओ, दे इवन हैड ऑल दिस थिंग विच कुड हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. नाउ what happened? The demand suddenly start increasing. Now the competition among all the European companies also increased, क्योंकि सब लोग एक ही चीज खरीदना चाह रहे हैं. एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, अगर मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आया है एंड एवरीबडी इज रनिंग एंड गोइंग टू बाय दैट न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, तो रिजल्ट क्या रहेगा उसका कि जो उसका प्रोड्यूसर है उसको पता चलेगा द प्रोडक्ट इज इन डिमांड. अगर वो कोई भी प्राइस चार्ज करे, एनी हाउ दे विल बाय. ओके, देयरफॉर हाई डिमांड विल लीड टू द इंक्रीज इन प्राइसेस. यहाँ भी सेम हुआ, क्योंकि कंपटीशन इन सब के बीच में हो गया था, यूरोपियन कंपनीज के बीच में, और डिमांड एक ही टाइप की गुड के लिए ज्यादा थी. देयरफॉर उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए गुड्स के. इंडियंस हैव नाउ स्टार्टेड चार्जिंग रियली हाई. अब इससे क्या हुआ, उनका मेन जो पर्पस था प्रॉफिट अर्न करने का, वो इट केम डाउन. वाई? क्योंकि मर्केंटाइल्स वर फेमस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, कि बाहर से सस्ते में सामान खरीद के और महंगे में सामान बेचना. दिस वॉज ऑल अबाउट देयर ट्रेड. लेकिन अब क्योंकि यहाँ प्राइजेस हाई हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, दिस लेड टू दी डिक्रीज इन प्रॉफिट. अब उनको इतना मुनाफा नहीं हो रहा था ट्रेड से. So they were looking for the solution, and in order to cut out the competition, they all now started attacking and sinking each other's ship. एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की शिप को कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसमें कुछ नुकसान करके उस शिप को नीचे डुबा दिया गया, so that कि वहां से वो सामान
यूरोपियन कंट्रीज में ना ले जाया जाए, एंड दे ओनली बिकम द सोल सेलर ऑफ दोज कमोडिटीज इन यूरोपियन नेशन। इसलिए उन लोगों के कंपटीशन कट करने के लिए यहाँ एक फाइट और स्टार्ट हो गई इन लोगों के बीच में, so that they could cut down the competition. Now what happened? The trade was now carried with arms and trading posts were protected through fortification. It means अब जब वो ट्रेड करते थे they used to carry arms क्योंकि खतरा है एक दूसरे से। ओके, ऑल्सो ट्रेडिंग पोस्ट बना दी गई थी, भाई ये जगह जो है इस यूरोपियन कंपनी के लिए है, ये पर्टिकुलर जगह यहाँ से ये वाली कंट्री की शिप आएंगी, ऐसे करके फोर्टिफिकेशन कर दिया था उन्होंने। अब क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया था, वेरियस कंपनीज नाउ स्टार्टेड अप्रोचिंग दी लोकल रूलर्स। अब उनको कुछ ना कुछ ब्राइब करके दे वांटेड टू गेट द होल ऑफ द एरिया एंड वांटेड टू कंट्रोल द होल एरिया। तो इस वजह से क्या हुआ, लोकल रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। When the company noticed that there was a hold of Portuguese people on the western coast, so now they wanted to try some other place in this territory, so that they were the only sole authority who were trading from that place. Okay, so now let's see how did East India Company begin trade in Bengal region. Okay, so this is very important, listen to it very carefully. The first factory of Britishers was set up on the banks of Hooghly River in Kolkata in 1651. Okay, and this was the base where the company traders came to be known as the factor operators. Factor operators means it was the factory of the ब्रिटिश पीपल इन बंगाल। ओके, ये वो वाली जगह है जहां से कंपनी के जितने भी ट्रेडर्स आएंगे दैट ऑफ फ्रॉम द यूके, दे विल बी सेटलिंग डाउन हियर एंड मेकिंग द ट्रेड फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, नाउ द warehouses were made, warehouses means godowns and etc were made here so that they can store their commodities, their goods here. Now as the trade expanded over the years, the company now wanted people to settle near the factory. अब क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी वहाँ आने के बाद, so they required number of people who will work as laborers there. सामान डालना उतारना भी तो एक टास्क है, उसके लिए लोग चाहिए थे। क्योंकि ट्रेड एक्सपैंड हो रही थी तो कंपनी नाउ वांटेड कि बहुत सारे लोग जो भी हैं जो कंपनी को हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, those people should come and settle down near the factory area. In 1969, what they started doing here is they now started building a fort around the factory area. बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दिए, किला टाइप बनाना शुरू कर दिया उस जगह को, in order to protect themselves from the other competitors. So this was the time around 1696. It means Aurangzeb is still alive because 1700 में ही passed away. तो 1696 में तब उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू किया। 2 साल बाद after 2 years later they started now bribing the Mughal officials. अब उन्होंने जितने भी राजा के करीबी लोग थे जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब करना शुरू कर दिया। They now wanted the company to have the जमींदारी rights. जो राइट्स यहाँ के लोगों के पास है, द कंपनी नाउ वांटेड दोज राइट्स विद देमसेल्व्स। और इस राइट के चलते उनको 3 विलेजेस के ऊपर जमींदारी राइट्स मिली, वन ऑफ विच वाज कालीकता, द प्रेजेंट डे कोलकाता। जमींदारी राइट्स उनको 3 विलेजेस की मिली, उनमें से एक थी कालीकता, द प्रेजेंट डे कोलकाता रीजन। ओके, नाउ but they were not satisfied. Now they also want Aurangzeb to issue a farman to the company to trade duty free. अब वो चाहते थे औरंगजेब उनको एक फरमान जारी करे। फरमान was a royal order. एक फरमान कौन पास कर सकता है? रॉयल ऑर्डर कौन दे सकता है? Who was the king? Okay, उस टाइम थे औरंगजेब। They now wanted Aurangzeb to issue that farman to the company so that they can trade from India to European nation without paying any tax or paying any duty.
मतलब कोई बिना ड्यूटी चार्ज करे वो ट्रेड इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट एक देश से दूसरे देश तक ले जा सके. नाउ द कंपनी वाज अगेन एंड अगेन वर्किंग फॉर दिस वेरी पर्पस, ताकि उनकी ट्रेड जो है ड्यूटी फ्री हो जाए, जिससे उनका प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा और इंक्रीज हो जाए. सो फाइनली दे वर ग्रांटेड विद द फरमान एंड दे गॉट द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब आपने देखा कि किसने फरमान जारी किया उनको कि ड्यूटी फ्री कर सके ट्रेड? औरंगजेब. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आ सकता है कौन से मुगल रूलर के अंडर ब्रिटिश कंपनी को फरमान जारी किया गया था टू ट्रेड ड्यूटी फ्री? आंसर इज औरंगजेब. ओके, दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से सिर्फ कंपनी ही फ्रीली ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पा रही थी. अदरवाइज सब जो लोग भी यहाँ से ट्रेड कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था. किसको पे करते थे? टू द किंग. किंग को कुछ हिस्सा उनको आके पे करना होता था एज अ टैक्स, क्योंकि वो हमारी जमीन पे आके हमारे साथ ट्रेड करना चाहते थे. नाउ द प्राइवेट ट्रेडर्स वर ओनली सपोज्ड टू पे द ट्रेड ड्यूटी. दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे द ड्यूटी. अब उन्होंने भी बोला कि हम भी कोई ड्यूटी पे नहीं करेंगे, इवन वी वुड ट्रेड फॉर ड्यूटी फ्री. एंड दिस थिंग हैज लेड टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल. क्योंकि कोई भी किंगडम है, कोई भी स्टेट है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, गवर्नमेंट कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है? थ्रू द टैक्सेस. ओके, तो उस जमाने में भी सेम था. अगर तुम लोग टैक्स और ड्यूटी नहीं पे करोगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से वो किंगडम को रूल करेंगे, कैसे चलाएंगे? Therefore, this everything not agreeing to pay the duty was leading to the loss of the revenue of Bengal. Now let's see what all happened and what all it led to. Now let's understand how the trade led to the battle. Now the conflict was getting and it was growing day by day. बंगाल रूलर्स एंड कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. ओके, एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अराउंड 1700 औरंगजेब पास्ड अवे. ओके, एंड आफ्टर हिज डेथ मेनी रीजनल किंगडम अराइज्ड. Therefore, the major rulers or the regional rulers who came after the death of Aurangzeb was Murshid Quli Khan, Alivardi Khan and Sirajuddaulah Khan. These were the Nawabs of Bengal. ये लोग नवाब ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते थे. सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उनके बाद आएंगे अलीवर्दी खान और उनके बाद आएंगे सिराजुद्दौला खान. एंड ईच वन ऑफ देम वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर. इन सब लोगों ने क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से ट्रेड हैज लेड टू द बैटल ग्राउंड. द नवाब्स ऑफ बंगाल नाउ रिफ्यूज्ड. उन्होंने किस चीज के लिए मना किया? कि कंपनी को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा ट्रेड करते वक्त. एंड ऑल्सो दे वांटेड नाउ द कंपनी टू पे अ लिटिल मोर एज अ ट्रिब्यूट. अब वो चाहते थे कंपनी कुछ उनको कुछ खास पे करे, जिससे उनको पता चले कि दैट दे आर बीइंग थैंकफुल फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया. ओके, नाउ even they also asked the company to stop minting the coins. कंपनी क्योंकि खुद के सिक्के बनाने लग गई थी आके, तो उन्होंने मना किया कि you have no right to make or to mint coins here in India. Also, they said no need to further expand your fortification. जो तुम किले बना रहे हो, fortification जो कर रहे हो around your factory area, you will not be expanding your territory. Okay, next they said they accused the company of the deceit. उन्होंने कंपनी पे इल्जाम लगाया कि कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है. And while deceiving the Bengal kingdom, they have carried away the Bengal's revenue and they have undermined the authorities of Nawab. उन्होंने बोला कि धोखा किया है उन लोगों ने उनके साथ. एंड ऑल्सो इस धोखे के दौरान उन्होंने जितना भी रेवेन्यू निकल सकता था बंगाल से वो लेके चले गए हैं रेवेन्यू, और बंगाल लॉस में आ गया है.
ये दिखाता है कि उन्होंने अथॉरिटीज ऑफ नवाब को सीरियसली नहीं लिया. उन्होंने सोचा कि दीज आर द रीजनल रूलर्स एंड वी आर नॉट बाउंड टू follow their authorities. Now, another problem will arise now, and the company will, let's see what the company will do. The company now refused to do all this. उन्होंने बोला जितने भी नवाब जो चीजें चाहते हैं नवाब ऑफ बंगाल, we will not do that, as the local rulers are now making it difficult for us to trade with India. और ट्रेड तभी ग्रो कर सकेगी, तभी फ्लरिश करेगी only if all these conditions were removed. अगर ये सब conditions नवाब हटा देंगे, उसी condition पे we will agree on trading with your kingdom. The conflict between the Nawab of Bengal and the company people continued, and it confronted into the famous Battle of Plassey. This is very important. Listen to it very carefully. A very interesting story here. As I've told you, there were 3 Nawabs. Okay, the very first was Murshid Quli Khan, second was Alivardi Khan, and third Nawab will become the Sirajuddaulah. So this was the time when Alivardi Khan, the Nawab of Bengal, died, and Sirajuddaulah Khan became the Nawab of Bengal. Okay, अब ये नवाब बन चुके थे. The company was worried about his power. भाई सिराजुद्दौला पावर में आ गया है, तो ये अब क्या steps लेगा? And they were now interested in finding a puppet. Puppet is someone जो कठपुतली होगी, okay, of the company, and they will work as per the company demand. Okay, so they were looking for a new puppet who will grant the concession along with the privileges to the company to trade free. So the company started to help the Sirajuddaulah rivals to come to the power. तो कंपनी स्टार्टेड प्लेइंग द माइंड गेम्स, और उन्होंने उन लोगों को जाके अप्रोच करना शुरू किया जो कि सिराजुद्दौला के राइवल्स थे, एनिमीज थे. दिस स्टेप ऑफ द कंपनी हैज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, कौन था उस टाइम? सिराजुद्दौला, very angry, and he asked the company to stop the interference in the political matter of the territory. Along with that, you also stop your fortification and start paying revenues to the kingdom. उन्होंने बोला कि अपनी फालतू की हरकत बंद करो, अपने इंटरफेरेंस मत लाओ हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में, जो तुम अपनी जमीन हड़पते जा रहे हो इन द नेम ऑफ फोर्टिफिकेशन, उसको बंद करो एंड स्टार्ट पेइंग योर टैक्सेस टू द किंगडम. बट हियर द नेगोशिएशन फेल्ड. उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी, जो उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. नॉट द कंपनी नाउ वांटेड टू पे द टैक्स, और उन्होंने अपनी इंटरफेरेंस भी बंद नहीं की और ना ही अपनी फोर्टिफिकेशन को रोका. देयरफॉर जो उनकी बातचीत थी, जो नेगोशिएशन होनी थी उनके बीच में, इट फेल्ड. नाउ द नवाब गॉट रियली एंग्री एंड ही आस्क्ड हिज 30,000 सोल्जर्स टू मार्च टुवर्ड्स द फैक्ट्री. उनकी एक और फैक्ट्री थी इन कासिम बाजार. उस फैक्ट्री में उन नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स को भेजा, एंड द सोल्जर्स देयर इन द कासिम बाजार फैक्ट्री लॉक डाउन द वेयरफेयर हाउस. उन्होंने उनके वेयर हाउस को जो बंद कर दिया, लॉक कर दिया. कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, जितने भी कंपनी ऑफिशियल्स वहां थे उनको अरेस्ट कर लिया. इंग्लिश मैन जितने थे वहां पे, उन जिनके पास आर्म्स थे उनके आर्म्स ले लिए, उनके गन्स वगैरह जितने भी उनके पास आर्म्स एंड वो जो चीजें लेके बैठे हुए थे उधर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको डिसआर्म कर दिया. एंड ऑल्सो दे ब्लॉक्ड ऑल देयर शिप्स, और उनकी सारी शिप्स को कैप्चर कर लिया, ब्लॉक कर दिया, सो दैट दे वोंट बी एबल टू ट्रेड. आफ्टर कैप्चरिंग देयर फैक्ट्री एट कासिम बाजार, the Nawab asked the soldiers to move towards the Calcutta city and capture their fort. अब उन्होंने बोला सिमिलरली सेम तुम्हें जाके उनके फोर्ट को कैप्चर करना है, सब चीजें लॉक डाउन करनी है उनकी. On hearing the news that the Sirajuddaulah soldiers are now marching towards Kolkata to capture their fort, and they have already captured their factory at Kasim Bazar, the company officials in Madras now start sending their forces to the Bengal kingdom. Okay, अब कंपनी के जो दूसरी forces थी which were in the region of Madras, they now started sending their force towards the Bengal in order to protect their fort. And this force was led by Robert Clive. Okay,
So finally, the war of Battle of Plassey happened between the company army and Sirajudullah, the Nawab of Bengal, in 1757. Company army was led by Robert Clive, and Sirajudullah, from his side, the forces were led by his commander Mir Zafar. And the battle happened in 1757 at the field of Plassey. Now, what was the result of this battle? The Nawab of Bengal was badly defeated, and the main reason of the defeat of the Nawab was his commander-in-chief, the Mir Zafar. Mir Zafar, जो सिराजुद्दौला का हमारे कमांडर था, he never fought the fight because he was bribed and he was promised by the Britisher that after the defeat of Sirajudullah Khan, he will be made the new Nawab of Bengal. उन्होंने उसको लालच दिया, अगर तुम ये लड़ाई हार जाते हो और हमारे साथ हाथ मिला लेते हो तो इस बैटल के बाद जो नया नवाब बनेगा वो तुम होगे बंगाल के. In order to become the new Nawab of Bengal, मीर जाफर उसने कभी ये बैटल लड़ी ही नहीं और इसका रिजल्ट ये निकला that Sirajudullah was badly defeated by the company. The Battle of Plassey 1757, it was the first victory of the company in the territory of India. After the battle, the Sirajudullah Khan, he was assassinated. He was hanged till death. And Mir Zafar was made the new Nawab of Bengal. The company's prime objective till now was to flourish the trade. कंपनी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर ही ध्यान दे रही थी. द कंपनी वांटेड टू ग्रो द ट्रेड. अभी तक उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट नहीं जागा था. लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि द कंपनी सून रियलाइज दैट द पपेट नवाब, जो उनकी कठपुतली थी, जो उनके कहने से चलता था, वो भी उसके डिसीजन भी हर टाइम कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं होते थे डिसीजन. नाउ the Mir Zafar, the new Nawab, started protesting against the company. Now the company decided to replace him with the another commander who became the new Nawab, the Mir Qasim. But what happened? In 1764, there was a battle of Buxar in which Mir Qasim was defeated and he started complaining to the company that you didn't support me and because of you, I lost the war. This made the company angry and he again replaced the Nawab of Bengal, and again Mir Zafar was again made the new Nawab of Bengal. But this time there was a condition for being the Nawab of the Bengal. Here the Mir Zafar now was supposed to pay 5 lakh rupees per month to the company in order to remain as the Nawab of the Bengal. But the company now wanted more of the money in order to finance its war. कंपनी को पता चल चुका था कि there are many more wars to come, क्योंकि अब पावर की फाइट चालू हो गई थी और कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कोई भी वॉर डिक्लेयर करना पड़ सकता है. Therefore they required a lot of finance from the kingdom. But what happened? In 1765, Mir Zafar died. Now the company was thinking that it had worked with the puppets, but still it was not so favorable for them. Robert Clive declared at this time that instead of working from the behind and from the root of the puppets, it's better, why not we ourselves become the Nawab of the kingdom. तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला इंस्टेड किसी और के थ्रू हम पावर एक्सरसाइज करें, इट्स बेटर कि हम खुद से ही यहाँ बंगाल के नवाब बन जाएं. एंड फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर ऑफ द बंगाल was declared as the दीवान ऑफ द कंपनी. जो उस टाइम 1765 में जो मुगल एम्परर वहाँ का राजा था, उसको उन्होंने दीवान बना दिया कंपनी का. दीवान का सोल पर्पस क्या है? That he will keep the check and balance of the revenue system of the kingdom. भाई कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, रेवेन्यू सिस्टम पकड़ा दिया एम्परर ऑफ बंगाल को, and they themselves became the Nawab of the Bengal. And by early 18th century, उनकी the trade started expanded. The goods were now imported by Britain.
बहुत सारे गुड्स वगैरह यहाँ से खरीद के और वो ब्रिटेन जाके बेच देते थे। टिल नाउ द कंपनी वाज ओनली बाइंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। कंपनी गुड्स खरीदती थी इंडिया से और ब्रिटेन में जाके बेच देती थी। तो कंपनी वाज बाइंग द गुड्स इन टर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर खर्च करके यहाँ से गुड्स बाय करते थे। बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड स्लो डाउन। अब जो कंपनी पहले गोल्ड और सिल्वर खर्च करके यहाँ से गुड्स खरीदती थी, अब वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो गोल्ड और सिल्वर उनकी साइड से आना बंद हो गया। और बिल्कुल ही बंद कब हो गया? जब कंपनी यहाँ की नवाब बन गई और दीवानी सिस्टम उन्होंने मुगल एम्परर को दे दिया। देयरफॉर अब क्या हो रहा था, क्योंकि खुद कंपनी यहाँ की नवाब बन गई थी और मुगल एम्परर वर द दीवानी और द रेवेन्यू ऑफिशियल ओनली, द रेवेन्यूज नाउ वर इनफ फॉर द कंपनी। अब जितने भी रेवेन्यू बंगाल किंगडम जनरेट कर रहा था, तो कंपनी के लिए वो रेवेन्यू, वो पैसा इतना था कि उससे वो अपने गुड्स लाइक कॉटन एंड सिल्क खरीद सकती थी, अपनी जितने भी वॉर है उनको फाइनेंस कर सकती थी, जितना भी उनका कॉस्ट लगता था और बिल्डिंग ऑफिसेस एंड वेरियस अदर बिल्डिंग एंड पेइंग देयर ऑफिशियल, वो सब उस रेवेन्यू से निकाल के वो काम कर सकते थे। पहले खुद के पैसे खर्च करके हमसे गुड्स खरीदते थे, अब द कंपनी वाज यूजिंग आवर मनी फॉर फ्लरिशिंग देयर ऑन ट्रेड। अब हमारे इंडियंस का पैसा ही यूज करके खुद का अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था कंपनी ने आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। That's it for today's video, guys. Now it's time to turn up your brain. The number one question of the day is, name the last powerful ruler of Mughals. Second question, name the 3 Nawabs of Bengal. Third question, what do you understand by the term Farman? Fourth question, when did the Battle of Plassey happen and who all fought in this battle? Fifth question is, who was the first foreigner to settle down in India? And the last question for the day is, who was Vasco da Gama? You guys need to answer all the questions in the comment section along with your name. Thank you for watching, and please do not forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't. Thank you once again. I'll see you guys very soon.